ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ مئی کے پاکستان انڈیا سٹینڈ آف کے بعد پاکستانیوں کو اور آزاد کشمیر کے رہنے والے ان جری اور بہادر لوگوں کو اس آزادی کی نعمت اور قدر و قیمت اس کی بہت اچھی طرح سے پتہ چل چکی ہے۔ اس دنیا کے خطے میں جہاں بھی اس وقت جنگ جاری ہے ان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ کسی بھی ملک کی خطے کے استحکام کے لیے ایک مضبوط، ایک بہادر اور ایک چٹان کی طرح کھڑی رہنے والی افواج کی کتنی ضرورت ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے 6-7 مئی کے بعد سے 10 مئی کو آخری وار کر کے دنیا پر یہ باور کرا دیا کہ ہم اس وقت نہ صرف ایک مضبوط قوم ہے بلکہ اس مضبوط قوم کی وجہ سے اس پاکستان کے نصیب میں مسلح پاک افواج کی شکل میں ایک چٹان ہے جو اس ملک کو دیکھنے والی میلی آنکھوں کو نہ صرف نکالتی ہے بلکہ اس تمام تر ایپیسوڈ کو دنیا کو دکھاتی بھی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں وادی لیپا، آزاد کشمیر، جنت نظیر وادی میں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پاکستان کی فوج نے دشمن کے توپ خانے کو نہ صرف خاموش کرایا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ تاریخ رقم کی کہ دشمن صدیوں نہیں بھولے گا۔ اس پروگرام کے آغاز کے ساتھ جو کہ سما اسپیشل ہے اور اس کو ہم نام کریں گے ستمبر کے یوم شہداء کے نام اور اپنے شہیدوں کے نام اور ان شہداء کے نام جو یہاں سے اس مارکہ حق میں بھی اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر امر ہو گئے اور انہوں نے ایک تاریخ بھی رقم کی اور آنے والی پاکستانی نسلوں کو یہ سبق بھی دیا کہ اتحاد، ایمان اور تنظیم اسی میں بقا ہے۔ محبت فاتح عالم تو ہے مگر اس کے لیے جنگی تیاری بہت ضروری ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں معززین لیپا ویلی اور ان کے ساتھ میں بات چیت ضرور کرنا چاہوں گی، بلکہ پروگرام کے آغاز میں ہی میں نے اس لیے ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا کہ جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو جوش و خروش دیدنی تھا لوگوں کا، وہ بات کرنا چاہتے تھے، وہ سننا چاہتے تھے، سنانا بھی چاہتے تھے، اور اس جوش و جذبے کو، اس ولولے کو ہمارا دونوں ہاتھوں سے سلام، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو پاکستان کی جڑیں مضبوط کرتی ہے اور یہی وہ وفاداری ہے کہ جس کی کہانیاں صدیوں سے لکھی گئی ہیں اور وہ دشمن کے مٹانے کی ہزار کوششوں سے بھی نہیں مٹ پاتی۔ جس وقت یہ سارا مارکا چل رہا تھا ہم نے بہت سنا کہ کشمیری لوگ اس قدر جذبے سے بھرپور تھے کہ انہوں نے فوج سے اجازت مانگی کہ ہم پوسٹوں پر آ کر آپ کے شانہ بہ شانہ لڑنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے اتنا آپ لوگوں کو جوش و ولولہ دیا؟ یہ جذبہ ایمانی تھا اور پاک فوج سے ہمارا اتنا بڑا رشتہ ہے کہ جب وہ پوسٹوں پہ گئے ہم نے ان سے اجازت مانگی کہ ہم پہلے آپ سے جائیں، پوسٹوں پہ جائیں، ہم آپ کی جگہ لڑیں اور آپ کے شانہ بہ شانہ رہیں۔ 2 جنگیں ہم نے لڑی ہیں یہاں پر۔ میں نے میری من میرا نام ہے 1965 میں اور 1971 میں۔ ہمارا جذبہ بہت زیادہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے پاکستان کا دفاع کریں اور آرمی کے ساتھ مل کر جو ہے نا دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں۔ ہمارا پورا یقین ہے، ایمان ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، اس کلمے کی برکت سے اللہ پاک نے جو ہے نا اس پاکستان کو جو ہے نا حفظ رکھا ہے۔ آپ کو کیسا لگ رہا تھا جب یہ سارا مارکا چل رہا تھا؟ کوئی چیز جو آپ کو یاد ہو اور جو آپ کو بہت اچھی لگی؟ یہ ہماری آرمی نے بہت کارنامہ کیا۔ ہماری میڈیم جو ہے نا وہ فائر کر رہی تھی اتنے جذبے سے، فائر بالکل ان کا فائر بھی آ رہا تھا، ہمارے جو ہے نا یہ میڈیم نے توپخانے نے بھرپور جو ہے نا فائر کیا۔ ہم بڑے خوش ہوئے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اور ادھر جو ہے نا اس پوسٹ پر انہوں نے جھنڈا تھا کہ سفید جھنڈا، ہاں کہ معاف کرو بھائی۔ آپ لوگ تو یہاں رہ رہے تھے، آپ لوگ تو ایک طرح سے بہت خوش نصیب تھے کہ آپ لوگ وہ سفید جھنڈے براہ راست دیکھ رہے تھے، تو کیسا لگتا تھا جب وہ جھنڈے ان کی پوسٹوں سے لہرا کے ریکویسٹ کی جاتی تھی کہ جنگ روک دی جائے؟ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، جذبہ تھا ہمارا کہ دیکھو دشمن جو ہے نا ابھی جو ہے نا سرنڈر کر دیا۔ اللہ کا شکر۔ اور گھر میں خواتین بچے، ان کا بتائیے وہ کیا؟ بہت بڑے ان کا جذبہ بھی بہت خوشی ہوگی ہمیں دیکھ کے وہ ویڈیوز بھی کہ ابھی فائر ہو رہا تھا اور انہوں نے ان کو جا کر ہار اور پھول ڈالے ہیں، تو یہ بہت ایک مجھے بہت خوبصورت بات پتہ چلی۔ ہم تو ہر وقت جنگی ماحول میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو لیکن ہمیں جو فخر ہوتا ہے، ہمیں جو اعتماد ہوتا ہے وہ اپنی مسلح افواج پہ ہوتا ہے کہ ہم چین کی نیند جب سوتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ مسلح افواج جو ہماری حفاظت کے لیے جو مامور ہے وہ انشاءاللہ العزیز کبھی بھی ہمیں جو ہے نا وہ
तकलीफ़ में या कभी भी हमें इंडिया के आगे जो है ना वो घुटने टेकने पे मजबूर नहीं करेगी। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये जो रिसेंटली इससे पहले भी मरके बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन ये जो बुनियानुम मरसूस का मरका था ये पूरी दुनिया को हैरान करने वाला मरका था। इस मरके में अल्लाह के फजल करम से इतनी इज़्ज़त दी है मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को, सब्ज़ हिलाली परचम को, और ख़ासकर हमारी जो मुसल्लह अफवाज है जो उनको पूरी दुनिया में के अंदर पिज़िराई मिली, जो हमारी एयर फोर्स है, जो उन्होंने एक रोल अदा किया है। पूरी दुनिया हैरान है उस रोल से कि इतना कम वसाइल के बावजूद इतना बड़ा टारगेट हासिल करना, और एक तरफ इंडिया का घमंड जो अपनी 1 अरब और 25 करोड़ के लगभग उसकी आबादी है, फिर उसकी जो फ़ौज है वो भी हमसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो तादाद में ज़्यादा है। असला के उसके अंदर इतना गरूर था, 5 ममालिक के उसके पास जदीद असला था, इसराइल के उसके तरबियत याफ्ता फ़ौज थी उसके पास जो उनको तरबियत दे रहे थे। लेकिन उसके बावजूद मेरे रब ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको इतना जलील और रुसवा किया है कि रहती दुनिया तक वो अपना जो रुसवाई वाला जो उनका चेहरा है वो इंशाअल्लाह वो मलते रहेंगे। इनके बिल्कुल अकब में मोहतरम सैयद अली गिलानी अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी सेंग है हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, और ये उनकी तस्वीर लगी हुई है बहुत खूबसूरत, और इसके दाएं बाएं पाकिस्तान का परचम है। मैं अपनी अफवाज को खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारी आंखों के सामने जो इंडिया को जवाब दिया, और अगर इंडिया का एक गोला आता था तो हमारे साथ जाते थे और हम आवाज़ से पहचान जाते थे कि ये हमारा फायर है, और हम नारे लगाते थे बाहर आके, और उस वक़्त भी हमारे हौसले बुलंद थे। इस वक्त तो माशाल्लाह हम जंग जीत चुके हैं, पूरी दुनिया ने ये इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान ने जंग जीती है। तो हम मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करना। चकपथरा पोस्ट से जब फायर शुरू हुआ पूरी वादी पे पहले इन्होंने फायर किया, उसके बाद पाक आर्मी ने जवाब देना शुरू किया तो इनकी तोपें इनके हर चीज़ बंद हो गई। तो हम सिविल आबादी जो है अवाम अब आर्मी के शाना बिशाना साथ सब गई और आर्मी से आगे निकलने की कोशिश शुरू कर दी। जब आगे निकले तो देखा कि उनके पोस्टों पे सफ़ेद झंडे चढ़ गए हैं। तो आर्मी ने कहा पीछे ये 4 दिन से ये मुसलसल फायर था, ये दूसरे दिन उन्होंने पोस्टों पे सफ़ेद झंडे लहरा दिए। तो पाक आर्मी ने सिविल आबादी को मना करना शुरू कर लिया कि आगे नहीं निकलना, हम आपके साथ हैं। तो वो वैसे भी उन्होंने सफ़ेद झंडे वो मिन्नतें कर रहे हैं कि अभी फायर बंद करो। अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी जिंदाबाद, इन्होंने हमारे हौसले आप किए और आइंदा भी हम यही उम्मीद रखते हैं। आपके चेहरों की इस खुशी को देखकर हम बहुत खुश हैं कि जिस तरीके से आपके सर फ़ख्र से बुलंद हैं। ये यकीनन ये सारा क्रेडिट जाता है इन जवानों को जो कि सीसा पिलाई दीवार है, मगर ये क्रेडिट आपको भी जाता है कि जिस तरीके से मनाजिर थे यहाँ पे, बच्चे बूढ़े ख़वातीन सब तैयार बैठे थे, इस हुक्म के मुंतज़िर थे कि हम जाकर अपनी अफवाज के साथ पोस्टों पे भी लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। वादी लीपा में सबसे पहले यहाँ ही से फायर शुरू हुआ चकपथरा से, और मुसल्लह अफवाज ने बड़ी भरपूर कामयाबी के साथ फायर किया, दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। हमारी फ़ौज मुसल्लह अफवाज बहादुर अवाम वादी लीपा के बच्चा जो है यहाँ इस पोस्ट की दफ़ा के लिए माएँ बहनें बेटियाँ सब इधर आईं। हम लोगों ने अपनी आर्मी के साथ दफ़ा किया, उनका अमलीशन भी वहाँ उस पोस्ट पर लेकर गए। ये सामने पोस्ट जल के राख हो गई है, लेकिन हमारे जवानों ने अपनी पोस्ट का दफ़ा करते हुए अपनी जानों का भी नजराना पेश किया। लेकिन हमारा मुल्क हमेशा सलामत रहे, डरने वाले नहीं, हम पीछे हटने वाले नहीं, हम अपनी फ़ौज के साथ मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। हमारा इंशाअल्लाह जान और माल पाक आर्मी के साथ है। हमारे 2 भाई इसी मार्के में शहीद हुए हैं। जो मार्के हक हुआ बुनियानुम मरसूस, इसमें पूरी दुनिया ने देख लिया, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की ताकत को देख लिया और ये दुनिया ताकत की ज़बान समझती है। ये सामने चकपथरा पोस्ट है जहाँ से जंग स्टार्ट हुई थी, इधर उनका जो हश्र हुआ आप अभी भी देख सकते हो, सारे दरख्त जले हुए हैं। इस जगह पे उनके ये पाकिस्तान आर्मी, ये जो हमारे सिविलियन लोग थे, इन सब ने मिलकर जब उन पे चढ़ाई की ना, ये इलाका वो छोड़ के भाग चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह लीपा वालों का मोराल किस तरह है पूरी दुनिया ने देख लिया। और ये जो हालिया जंग हुई है, इस जंग में पूरी दुनिया को इस बात का पता चल कि जो बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो भी आबादी है, चाहे वो लीपा वैली है, चाहे वो नीलम वैली है, चाहे वो बाग है या जहाँ भी आज़ाद कश्मीर की, तो वो लोग पाकिस्तान आर्मी के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। और इस वक्त हर घर में शहीद भी हैं और गाजी भी हैं।
पाकिस्तानी अफवाज ने जानबूझकर सिविल आबादी को निशाना बनाना शुरू किया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त अफवाज की तनसीबात के बिल्कुल साथ साथ ये लोग रह रहे हैं और ये इतने हौसले वाले हैं कि इन्होंने अपने घरों को खाली करने से इनकार कर दिया। फ़ौज की जानिब से इनसे बारहा रिक्वेस्ट की गई कि हम आपके लिए आपकी हिफाजत पर मामूर हैं, आप मत आएँ, मगर सलाम है इन लोगों को कि इन्होंने पोस्टों पर चाय खाना हर चीज़ की रिक्वेस्ट की कि हम आपका ख्याल रखेंगे, आप बस अपनी लड़ाई मुकम्मल लड़ें। और दूसरी जानिब भारत की जानिब अफसोस का मकाम है कि उन्होंने अपने कई इलाकों पर फेक शेलिंग में ख़ुद आबादी वाले इलाकों पर ख़ुद शेलिंग करके और आबादी में ये ऐलानात किए कि ये शेलिंग पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है। फ़ौज हमारी माथे का झूमर सार का ताज है। अल्लाह के फजल करम से हमने फ़ौज के साथ मिल के जंग लड़ी। अभी भी मोदी जो सोच रहा है ना वो गलत सोच रहा है, उसकी गलत सोच है। अल्लाह के फजल करम से हमारा बच्चा, नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग सब तैयार हैं। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी वादी बल्कि पूरा आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान हम सब मिल के अपनी मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान से उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे ना, उसकी नस्लें याद रखेंगी। हम इंशाअल्लाह ताला जब तक वो हमारे पार के कश्मीरी भाई आज़ाद नहीं होते, हम इंशाअल्लाह ताला अपनी बागर मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान को साथ लेके उनको भी आज़ाद करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें वो दिन भी दिखाएगा। 6 सितंबर भी है, यौम शुहदा भी है। इस खित्ते ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत शहीद दिए हैं। इधर हमारे घर के ऊपर भी जो वो भारत का आके जो अपना बम है वो डिगा है, लेकिन हम उसी घर में मौजूद रहे, घर से निकले नहीं है, हम भागने वाले नहीं हैं। तो ये हमारी धरती है, ये धरती हमारी माँ है, हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। इंशाअल्लाह जब भी फ़ौज को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम फ़ौज के साथ इंशाअल्लाह जाएंगे, मदद करेंगे, उनकी उनको जंग लड़ेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, उनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी हम इंशाअल्लाह उनकी मदद करेंगे। मोदी ने जो राफेल भेजे थे वो तो क्रैश हो गए और वो फेल भी कर दिए पाकिस्तान ने, और जो ड्रोन आए थे वो भी गिरा दिए। जब पाकिस्तान ने बुनियाद मरसूस शुरू किया, सीसा पलाई दीवार की तरह भारत के सामने खड़े हो गए और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, हमने अब यहाँ से आगे पाकिस्तान की आर्मी की जो एक पोस्ट है उसकी जानिब जाना चाहेंगे, मगर आपने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में जो जगह देखी जहाँ से मुझे आपने बात करते देखा, ये यादगार शुहदा है लीपा वैली की, और वादी लीपा के शुहदा के नाम यहाँ पे कुंदा हैं। इन पत्थरों के ऊपर मेजर अजीज़ शहीद सितारा जुरत 1971 में शीशा लदी की जंग में उनकी तस्वीर लगी है। मेजर साबिर खान शहीद सितारा जुरत 1972 में चकपतरा की जंग में, और इसके साथ साथ यहाँ मेरे सामने जो मेन प्लाक्स हैं उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल हकनवाज कियानी शहीद सितारा जुरत, और 1972 में ये भी चकपतरा की जंग में शहीद हुए हैं। कैप्टन अब्दुल जब्बार तमगा जुरत, बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद की तस्वीर यहाँ लगी है। गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान, मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम ख़ान, और यहाँ पर बहुत सारे मज़ीद भी लोग हैं जिनकी तस्वीर लगी हैं। पोस्ट पर चलकर आपकी जिन जवानों से बात कराएंगे कि वो जवान हैं कि जिन्होंने तोप खाने को बब्बर शेर और उन चीतों की शक्ल दे दी कि जिन्होंने बैक वक्त हमला आवर होकर भारत की नींदें ही नहीं उड़ाई, बल्कि आज भी उनका ये हाल है कि इस लाइन ऑफ कंट्रोल पर जैसे कि वो माजी में बुनियानुल मरसूस मार्का हक से पहले बिला इश्तियाल फायरिंग होती थी, अब उनमें वो बिला इश्तियाल फायरिंग और दुनिया के सामने उस ड्रामे की भी हिम्मत नहीं रही। तो चलते हैं अपना सफ़र इस पोस्ट की जानिब शुरू करते हैं और आपको उन जर्री जवानों से मिलवाते हैं। ये वो जवान है कि जिसने यहाँ मार्का हक में डे इन डे आउट, हर रात, हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम अपने जवानों के साथ यहाँ खड़े होके अपने तोपखानों का रुख जब हिंदुस्तान की जानिब किया तो दोबारा वहाँ से आवाज़ें तो नहीं आई मगर सफ़ेद झंडे ज़रूर लहराए गए। ये एक बहुत चैलेंजिंग टाइम होता है और ये एक बड़ा मुश्किल वक्त होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेनिंग इस लाइन्स पे होती है कि हमें कोई भी चैलेंज बड़ा चैलेंज नहीं लगता। और जैसा कि आपने देखा है मार्का हक के दिनों में हमने दुश्मन को और दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया और उनको सफ़ेद झंडे लहराने पे मजबूर कर दिया। अच्छा कर्नल आमिर, आप लोगों के कॉन्फिडेंस में और फील्ड मार्शल के कॉन्फिडेंस में बड़ी सिमिलैरिटी है, और जब वो बात करते थे, जब ये सारा कुछ अभी चल रहा था पोस्ट पहलगाम भी, एक दुश्मन अपने आप को गियर अप कर रहा था हमले के लिए, तो हम उनको जहाँ भी बोलते देखते थे
उनकी बातचीत में बला का एतमाद था, वो ललकार के बात कर रहे थे, कहीं पर भी लगा नहीं कि वो किसी मामले में फ़िक्रमंद हैं। और वो ये कहते भी हैं कि मुझे ये सारा हौसला, ये ख़ुद एतमादी मेरे जवानों से आती है। तो जब वो यहाँ पे विज़िट्स करते हैं, आप लोगों के पास भी जब आते हैं, तो उनकी जानिब से क्या नसीहत होती है? और फिर मार्का हक से पहले भी आप लोगों की मुलाकात हुई होगी, इंस्ट्रक्शंस क्या थी आप लोगों को कि इस बार कैसा जवाब देना? हमारे जवान और हमारे ऑफिसर्स वी आर वेरी क्लियर। दुश्मन जिस कैलिबर में हमारे ऊपर हमला आवर होता है, हम उसको उसी की ज़बान में हम जवाब देते हैं। हमारा अल्लाह ताला की ज़ात पे ईमान है, और उसके बाद जो हमें मजबूत बनाती है वो हमारी ट्रेनिंग है। उसके बाद हमारा कमांड स्ट्रक्चर वो इस तरीके से होता है कि वो हमेशा और हर लम्हे हमें हौसला और हमारा एतमाद बढ़ाता है। और हमारे सीनियर की गाइडेंस और हमारी ट्रेनिंग, जब हमें मैदान जंग में दुश्मन के साथ हमें मुकाबला हमें करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला का करम और कौम की दुआओं से हम किसी भी किस्म की किसी भी मुश्किलात को मुश्किलात नहीं समझते। 6 सितंबर की मुनासबत से अगर आप अपने अवाम को, अपने पाकिस्तान के लोगों को और मार्का हक की जीत की खुशी में अगर आप कुछ कहना चाहें। 6 सितंबर के मौके पे मैं अपनी कौम को ये पैगाम देना चाहूँगा, अपनी माँओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपने भाइयों, अपने बुज़ुर्गों को, कि आपकी अफ़वाज पाकिस्तान हर तरह की जारहियत से निपटने के लिए तैयार हैं। और मैं साथ ही साथ दुश्मन को भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आप में हिम्मत है और अगर आप हमें आजमाना चाहते हैं, तो आप एक दफ़ा दोबारा आजमा के देख लें। हम आपकी किसी भी बर्बरियत के आगे ना रुकने वाले हैं और ना झुकने वाले हैं। बहुत फ़ख्र महसूस करता था उस टाइम के, जब मैं LOC पे खड़ा था, तो मुझे बचपन ही से पाक आर्मी ज्वाइन करने का बहुत शौक़ था। तो जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ज्वाइन की, और मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ। हमने ये जो वर्दी पहन ली है, ये हमारा कफन है। सबसे बड़ी हमें बात यह है कि हमने कलमा पढ़ा है, तो हमें फ़ख्र है। दिफा के लिए बैठे हैं, तो इंशाल्लाह हम दिफा करेंगे। हमारा यही टारगेट था कि दुश्मन को बार बार पीछे भगाने की कोशिश की है, ताकि वो दुश्मन अपनी पोस्टें छोड़कर पीछे जाए। और उन्होंने ये दिखाया और भागे उन्होंने दिखाया है कि सफ़ेद झंडे लहरा के दिखाया है कि हम इसके काबिल नहीं हैं। हमारे साथ ये बर्ताव हो गया है कि पाकिस्तानी अफवाज जो है बहुत सख्त है, और उनको पता चल गया कि इनके मुकाबले में हम नहीं हैं। तहरीक-उन फैसला वही था जब हमारी एयरफोर्स ने, एयर डिफेंस ने, आर्टिलरी ने जो शेलिंग की उनके ऊपर, तो वो इस तरह एक कहर की तरह उनके ऊपर जो बरसी है। तो उसके बाद जब उनके एमिनेशन डिपो और डिफरेंट लोकेशंस जो हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो हिट हुई, तो उसके बाद उनका ऑलमोस्ट मोराल जो था और जो मोटिवेशन थी वो सब ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल खाक में मिल गई थी। तो वो एक हमारा जो अचीवमेंट पॉइंट आप कह सकते हैं कि जिस तरह एयरफोर्स ने भी ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर प्लस से एनिमी को इंगेज किया और उनके एयरक्राफ्ट भी रहे हाई, आप जैसे रिफाइल है उनका 4.5 जनरेशन है, ठीक है, तो उनको गिराना सब बिग अचीवमेंट फॉर अस। 2 रफाल्स तो आपके यही LOC के पार करीब ही गिरे। जी एग्जैक्टली ऐसे गिरे। और रही बात पोस्ट पे, तो पोस्ट पे एनिमी कंटिन्यूसली इसी तरह फायर हम पे कर रहा था। तो जिस जगह पे मेरी पोस्ट है, तो एनिमी उसको ऑलमोस्ट चारों तरफ से इंगेज कर रहा था, क्योंकि सब बल्ज हम उनके थोड़ा सा अंदर गए हैं और वहाँ पे वो डोमिनेट कर रहा था, बट हमने उनको डोमिनेट करने नहीं दिया। जिस तरह हमारी कौम ने हमारे लिए दुआएं की हैं और जिस तरह वो प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे थे, तो वो एक बड़ा बूस्टिंग हमारे लिए सिनेरियो था। जब पहली पोस्ट उड़ी है, तो उसके बाद उनकी तरफ से शाउटिंग और रोने की आवाज़ें, तो वो एक बड़ा प्राउड मोमेंट था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान आर्मी इस तरह जवाब देगी। जंग तो हर किसी ने किताबों में पढ़ी हुई है, बट इट वाज समथिंग रियली डिफरेंट ऑन ग्राउंड। जब वो जंग से और एस्केलेशन सारी स्टार्ट हुई, वो जो फीलिंग है वो व्हेन यू हैव दिस फीलिंग कि आप अपने दुश्मन के अगेंस्ट, वो भी जो सदियों से हमारा दुश्मन है, उसका हमें पता है, और उसके अगेंस्ट जब आपको एक मौका मिला लड़ने का, जिसके लिए आप इस फ़ौज में आए, हम जिस वो हमारा मकसद था इस फ़ौज में आने के लिए, और उसका मौका जब मिला, तो वो जो फीलिंग थी और वो जो लड़ने का जज्बा था तमाम जवानों का, तमाम ऑफिसर्स का, लोगों का, अनबिलीवेबल। वो यहाँ पे मैं आपको अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। घर वालों की तरफ से एक ही इंस्ट्रक्शंस थी। वालिद साहब जब भी उनसे बात होती, वालदा से, तो उन्होंने कभी परेशानी का आलम ज़ाहिर नहीं किया कि या कोई जंग हो रही है, बेटा उधर है। उन्होंने हमेशा एक बात की, बेटा के नाम जो है वो सिर्फ मुल्क का और हमारा फ़ख्र से बुलंद करना है। और आपने इस तरह मतलब दुआ करते थे कि अल्लाह हमें साबित कदम रखे, ये दुआएं वो देते थे। कभी उन्होंने परेशानी का आलम के या बेटा उधर है या बच्चे उधर हैं, ये चीज़ कभी उनसे ना वाइब आई है, ना उन्होंने कभी इस तरह की बात की है, बल्कि हमेशा उन्होंने समझाया और उन्होंने बताया
کہ لڑنا ہے شیر کی طرح لڑنا ہے. بینگ اے مسلم جو اتنے بڑے ہمارے سے کئی گنا بڑا دشمن ہے, اتنی بڑی فوج ہے, بٹ یہ جو اس میں جو ہمیں دشمن کے اوپر حاوی کرتا ہے وہ ہمارا ایمان ہے, اللہ پر یقین ہے. یہ وہ واحد چیز ہے جو ہمیں اس چیز کی جو ہمیں دشمن کے اوپر ڈومیننٹ بناتی ہے. اور اس کے اندر انسان کا یہ ڈر نہیں ہوتا کہ یا موت ہے یا کچھ ہے, کیونکہ اس کا وہ ڈاؤٹس کلیئر ہوتے ہیں. اس کا پتہ ہوتا ہے زندہ گیا ہوں تو غازی, زندہ نہ گیا تو شہید. تو ون ون سچویشن ہے. جب بھی ہم کسی ایسی کرٹیکل پوسٹ پر ہوتے ہیں, چاہے وہ لائن آف کنٹرول ہو, چاہے وہ ورکنگ باؤنڈری ہو, چاہے وہ ہمارا انٹرنیشنل بارڈر ہو جس پر دہشت گردوں کی نظر ہے, تو یہی ہمارے بیٹے اور بھائی ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ سکون سے سوئیں, ہم یہاں پر ہیں حفاظت کے لیے. حتیٰ کہ اگر آپ کو میں تمیم کے ساتھ ہی بلکہ نیچے میں لوکیشن بھی آپ کو دکھاؤں تو یہ سارے گاؤں ہیں. یہاں پہ لوگ کاشتکاری کرتے ہیں, کھیتی باڑی کرتے ہیں. اور میں ان سے بات کر رہی تھی, یو ہیو نو آئیڈیا کہ دا لوکلز وانٹیڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان دس وار تھیٹر. وہ ان کے پاس آنا چاہتے تھے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنا چاہتے تھے. تو یہی وہ لڑکے تھے جنہوں نے ان کو تسلی دے کر گھروں کو واپس بھیجا. اور یہی وہ لڑکے ہیں کہ صرف لائن آف کنٹرول نہیں, ملک کے چپے چپے پہ سرحدوں کی حفاظت کا ذمہ انہوں نے اٹھایا ہے اور قسم اٹھائی ہے اور حلف لیا ہے, اور اپنے حلف کو آخری دم تک, آخری خون کے قطرے تک پورا کرنے کا عزم بھی رکھتے ہیں. اور یہ عزم معمولی نہیں, یہ آہنی عزم ہے جس کو دشمن کبھی بھی توڑ نہیں سکتا. اب وقت ہے اس آواز کی جو حق بن کر باطل پر چھا جاتی ہے, اور اس باطل پر خوف کا عالم ہوتا ہے, دہشت ہوتی ہے, ہیبت ہوتی ہے. میرے ساتھ اس وقت کمانڈنگ آفیسر موجود ہیں اور ان کے تمام تر جوان موجود ہیں. میں ان سے درخواست کروں گی کہ بآواز بلند اتنا بلند نعرہ لگایا جائے تکبیر کا اور پاکستان کا اور پاکستان کی فوج کا, کہ وہ پہاڑوں میں پیچھے ہندوستان کے مورچوں تک آواز جائے جو جل تو چکے ہیں, مگر ان کی دوبارہ ان کی آبادی کی جو پلانز ہیں وہ بھی ملیہ میٹ ہو سکیں اور ان پر خوف کا عالم چھایا رہے. کمانڈنگ آفیسر, آپ کی اجازت سے میں چاہوں گی کہ بھرپور آواز میں پاکستان کا نعرہ بلند کیا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. تھینک یو سو مچ. اور صرف ان کی آوازیں ہی کافی ہیں. ہم تو مائک میں بولتے ہیں تو آواز اونچی آتی ہے, مگر ان جوانوں کی آواز وہ پہاڑوں تک جا رہی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت وہاں سے دوربینوں کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج اور اس کے جوان مارکہ حق کا جشن تو منا رہے ہیں, مگر یوم دفاع اور 6 ستمبر پر اپنے شہداء کا خون نہیں بھولے, اپنے غازیوں کو عزت دینا نہیں بھولے. آپ سے سما اسپیشل سے یہاں سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. Thank you.